things with you. Yes. So last time हम क्या कर रहे थे? Let me just check. Yes. So good. So I think you can see my screen right now. ओके तो लास्ट टाइम हमने ये किया था यहाँ तक, ये वाले क्वेश्चन थे आपके, ये थे आपके एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की एक कंडीशन होती है दैट इट शुड सेटिस्फाई के डेल्टा एम ओवर डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा एन ओवर डेल्टा एक्स इफ योर डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, राइट। फिर इसको हमने सॉल्व कैसे किया था? तो फर्स्ट काम था हमारा चेकिंग, तो हम चेकिंग करते थे वेदर दिस गिवन इक्वेशन इज एन एग्जैक्ट इक्वेशन और नॉट। तो सबसे पहला काम था हमारा चेकिंग। फिर हम क्या करते थे, वी इंटीग्रेट दिस पार्ट m के विथ रेस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट, राइट, प्लस ओनली दोज टर्म्स ऑफ n विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ x। ओके, तो जो टर्म जिनमें x नहीं होती थी वहाँ पर हम रखते थे एंड देन वी इंटीग्रेटेड विथ रेस्पेक्ट टू y एंड देन दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो m integral m dx plus integral terms of n which are independent of n times t by equal to constant, ये इसका हम सॉल्यूशन लिखते थे। एंड बेस्ड टू दीज थिंग्स हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए थे और मैंने ये एक एग्जाम्पल लास्ट में लिख दिया था। एंड आई होप कि आपने पेन जरूर चलाया होगा। चलाया था, वेरी गुड। ओके, तो अगर जिसने पेन चलाया है तब तो फिर उसने कर लिया होगा। हो गया था, वेरी गुड। ओके, कौन बोल रहा है ये? मे आई नो? हर्ष। सो वेरी गुड हर्ष, एंड थैंक यू फॉर द कंप्लीट पोएम। ओके, एंड नाउ लेट मी स्टार्ट फर्दर। So some of the equations which are not exact equation, you can reduce these equation to exact equation. So let us see, okay, which are these equations. So today I am going to start equations which are reducible, equations reducible to the exact differential equations, right? So if your equation is not an exact equation, then what do we do? Okay, so what we do, we calculate some multiplying factor, okay, that is called integrating factor in this case, and then we multiply this factor to the whole equation, okay, and then this equation should become an exact differential equation. So what we do, we check first of all whether after multiplying this equation becomes an this equation has become an exact equation or not. Okay, and then we, if it is a exact differential equation, we can write down the solution. हम क्या करते हैं, हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले हम किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, उस फैक्टर को हम कैलकुलेट करते हैं। सो देयर आर सर्टेन रूल्स, ओके, अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स वी कैन कैलकुलेट दीज फैक्टर्स। कि ऐसा नहीं है कि रैंडमली कुछ भी है, ओके, देयर आर सम सर्टेन रूल्स, उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम उनको कैलकुलेट करते हैं। एंड जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल आता है, जो भी फैक्टर हमारा निकलता है, उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन से, सो दैट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, बट इन ईच केस यू हैव टू चेक वंस अगेन, ओके, कि ये बनी है कि नहीं बनी है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड अगर वो बन गई है देन इट्स फाइन,
and then you can apply your usual formula, that is integral m dx keeping by constant plus integral only those terms of n which are independent of x times d by equal to constant, right? So let us see what are these rules. Okay, so rule 1 says rules. The first one, okay, so first one says if delta m over delta by minus delta n over delta x by n is a function of x alone, okay, let us say fx, okay, then your integrating factor is equal to e to the power integral fx dx, okay, this is your rule 1. Then rules 2 says if delta m over delta by minus delta n over delta x by m is a function of by alone, let us say f by, then the integrating factor is e to the power minus f by d by, okay. Then rule 3 says, okay, if m dx plus n dy equal to 0, okay, is a homogeneous differential equation, and m x plus n by is not equal to 0, then integrating factor is equal to 1 over mx plus n by, okay. Rule number 4 says if m is of the form m equal to by f1 x by and n is of the form n equal to x f2 x by, okay, and f1 x by is not equal to f2 x by, then the integrating factor is equal to 1 over mx minus ny. And the rule number 5 says, okay, that if your differential equation is of the form if the differential equation is of the form, if it is in the form x to the power a, y to the power b, okay, m by dx plus nx dy plus x to the power c
by to the power d, okay, mu by dx plus nu x d by equal to 0, okay, where these a b m n और क्या है इसमें c d mu and nu, they are constants. Has an integrating factor, then it has an integrating factor equal to x alpha by beta, okay, where alpha and beta are so chosen that after multiplying by x to the power alpha by to the power beta, okay, the equation, ये इसको कुछ नाम दे देती हूँ, equation A becomes an exact equation. Okay, so these are 5 rules. Okay, इन रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं. ओके, सो प्रैक्टिस हो जाएगी तब आपको देखकर भी शायद पता चल जाएगा कि इसमें ये रूल अप्लाई करना है. सो बट अगर नहीं है जिस समय प्रैक्टिस, तो हम ये कर सकते हैं, रूल नंबर 1 अप्लाई करो, देन रूल नंबर 2 अप्लाई करो, एंड देन सो ऑन. ओके, तो इट इज़ अप टू यू कि आप कितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो इसमें इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीन एग्जैक्ट फॉर्म में क्या होता है आपका, you calculate an integrating factor, so and this integrating factor is then multiplied to your equation, then this equation becomes an exact equation, and then you solve this equation by the method you have solved earlier. Okay, so now let us take few examples. So let me take few examples. हाँ बोलो. और ऊपर or let me just read it once again. Okay, so rule number 1 says if delta m over delta by minus delta n over delta x by n is a function of x alone. Okay, तो केवल x का फंक्शन है, उसको मैंने fx बोल दिया है, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा हो जाता है e टू द पावर इंटीग्रल fx dx, राइट. इफ एंड रूल नंबर सेकेंड में क्या है, इफ डेल्टा एम ओवर डेल्टा बाई माइनस डेल्टा एन ओवर डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एम इज ए फंक्शन ऑफ बाई अलोन, केवल बाई का फंक्शन आता है अगर, के तो उसे हमने एफ बाई बोला है, देन योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई टू द पावर माइनस एफ बाई डी बाई, and then rule number 3 says if m dx plus n dy equal to 0, this is an homogeneous differential equation. homogeneous differential equation आप पहले कर चुके हैं, so you know what is homogeneous differential equation. And if mx plus n by is not equal to 0, then integrating factor is 1 over mx plus n by. okay, तो 1 over ये लिखा है इसलिए mx plus n by is not equal to 0, तभी ये valid है. Then if m is of the form by f1x by and n is of the form x multiplied by f2x by, okay, and these two are not equal, f1 and f2, then the integrating factor is 1 over mx minus n by. Okay, and rule number 5 says if you have this type of differential equation where all these a b m n c d mu nu they are all constants, then in this case you write down your integrating factor x to the power alpha by to the power beta. Okay, and then you choose alpha and beta, okay, in such a manner so that your equation becomes an exact differential equation.
सो ये रूल नंबर 5 अभी पूरी तरह से तुम्हें समझ में नहीं आया होगा, लेकिन एग्जाम्पल करोगे इसका तो आपको बहुत अच्छे से ये पता चल जाएगा कि कैसे करते हैं. ओके, सो डोंट वरी अबाउट रूल नंबर 5 and other 4 rules are very easy, so you can easily understand. So now let me take examples. Example number 1. Solve x square plus y square plus x dx, x square plus y square plus x dx plus x by d by equal to 0. Okay, so we have to solve this equation. Let us solve this equation. तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? To check whether this equation is an exact equation or not. If it is not an exact equation, then we want to make it an exact equation. So first of all check. So find out, check करने के लिए हम क्या करेंगे? We know this is our m and ये क्या है हमारा? N, right? So we find out whether this condition is satisfied. So let us calculate delta m over delta by. So delta m over delta by हमारा क्या आ गया? यहाँ से 2 by and delta n over delta x is equal to by. So this means this equation is not exact. So this implies equation 1 is not an exact differential equation, right? Okay. Now if it is not an exact differential equation, then what do? We apply rule number 1. Okay. So if rule number 1 is not applicable, then we go to rule number 2 and so on. Okay. So first of all, let us apply rule number 1. So however, delta m over delta by minus क्या था वो rule number 1? Delta n over delta x by n. Okay. So this is equal to, ये क्या आ गया आपका? Then delta m over delta by is 2 by minus by over n क्या है हमारा? x by, right? So this is equal to by over x by, so you get this is equal to 1 by x, right? So our integrating factor is a function of x alone, a function of x alone, right? So this means your integrating factor is, integrating factor अब क्या आ जाएगा? This is equal to e to the power integral, यहाँ पर क्या है आपका? 1 by x, so 1 by x dx, right? So this is equal to e to the power log x, and these exponential and log, they cancel each other, so you get this thing equal to x. Okay, so your integrating factor is x. Now what do? We multiply. Now multiply equation number 1 by integrating factor. Okay, जो कि हमारा आया है x, so we multiply it. तो हमारी इक्वेशन क्या थी? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा ये क्या आ जाएगा? x क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर, okay, प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर बाई, this is equal to 0. Okay, so when you multiply this integrating factor, now this equation should become an exact differential equation. So then again we have to check. So again check for exactness. Okay, so if you check it, then this means अब हमारा m क्या हो गया? Check exactness of equation 2. Okay, तो अब हमारा m क्या हो गया?
m is now x cube plus x y square plus x square, right? और n है हमारा x square by. So let us check it. तो वो क्या था, कंडीशन क्या है, डेल्टा m ओवर डेल्टा बाई, डेल्टा m ओवर डेल्टा बाई. तो यहाँ से ये क्या आ गया आपका, यहाँ से ये तो x का फंक्शन है तो जीरो हो जाएगा, थर्ड टर्म भी जीरो हो जाएगी, ओनली सेकेंड टर्म इज लेफ्ट आउट. तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 2x बाई, एंड यहाँ पर डेल्टा n ओवर डेल्टा x, एंड यहाँ से भी आपका आ जाता है 2x बाई. So you can see from here that the condition is satisfied. Okay, so therefore this implies delta m over delta y equal to delta n over delta x. Okay, in equation 2. So this implies equation 2 is an exact differential equation, right? And if it is an exact differential equation, then we can write solution. So the solution is क्या आ जाएगा, इंटीग्रल m dx कीपिंग बाई कांस्टेंट. सो m क्या था हमारा, x क्यूब प्लस x बाई स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx. okay, plus only those terms which do not contain x. तो n में तो x है, राइट, n में कोई ऐसी टर्म नहीं है कि जो एक ही टर्म है एंड उसमें x है. सो दिस मीन्स कि यहाँ पर नो टर्म, ओके, नो टर्म. सो दिस मीन्स कि ये तो जीरो ही हो जाएगा, राइट, एंड केवल इसको इंटीग्रेट करके लिख देना है. सो इंटीग्रेट करके लिख दो जो भी कुछ आंसर आए. तो ये क्या आ गया, x टू द पावर 4 बाई 4, ओके, एंड प्लस ये विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं आपका, तो बाई कांस्टेंट है आपका, तो बाई स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा, एंड x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा आपका यहाँ, प्लस x क्यूब बाई 3 इक्वल टू ए कांस्टेंट. ओके, समझ में आ गया, ठीक है. Okay, so let us take next example. Solve 2x log x. एक मिनट पानी पी लूं, प्यास लग रही है बड़ी देर से. So let us solve 2x log x minus x by d by plus 2 by dx equal to 0. Okay, so we have to solve this equation. So first of all we have to recognize m and n. So m and n, यहाँ पर m कौन सा होगा, हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए, m dx plus n dy. So यहाँ पर हमारा m है, this one is your m, right, and this one is your n. Okay, so now check for exactness. तो exactness check. Okay, so यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, डेल्टा m is this and is this, so delta m over delta by this is equal to 2. Okay, delta n over delta x, so delta n over delta x you can calculate. okay, तो यहाँ पर हर टर्म में है, so be careful. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 एंड देन फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट दोनों है x log x, दोनों x के फंक्शन है. सो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, ओके, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये आ जाएगा
यहाँ से और क्या आ जाएगा, माइनस बाई, राइट, माइनस बाई, इज दैट राइट? ओके, सो x से x कट जाएगा ये, सो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस लॉग x, सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग x and minus y, right? तो ये आ गया हमारा, सो यू कैन सी इट क्लियरली दैट these two are not equal. By looking at it also you can make out कि these are not equal. So what do we do? Okay, but in any case we need delta m over delta y and delta n over delta x, and therefore we calculate it always. Okay, so now we apply these rules. So let us say rule number 1. So rule number 1 है so equation 1 is not an exact differential equation. Okay, so we apply this rule. So however, delta m over delta क्या था rule, by minus delta n over delta x and divided by क्या था n. Okay, so let us do it. तो डेल्टा m over डेल्टा बाई तो हमारा आया था 2, सो 2 माइनस एंड ये आ गया 2 1 प्लस लॉग x माइनस y और डेल्टा m ये हो गया दोनों, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय ये क्या है हमारा n, और n है हमारा 2x log x, 2x log x माइनस xy, राइट? सो ये आ गया. नाउ जस्ट सॉल्व इट. तो इसको सॉल्व करते जाओ. तो ये क्या आ गया आपका, यहाँ से इसको 2 माइनस 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, सो 2 log x के माइनस 2 log x, सो माइनस को भी अगर हम बाहर ले लें तो ये आ गया 2 log x के 2 log x के माइनस y, ये आ गया. और नीचे से हम यहाँ पर इसको x को बाहर ले सकते हैं, सो x, तो ये 2 log x minus y, right? Now if you do that, then these things they cancel each other, and therefore you get this simple factor minus 1 by x, right? And this factor is a function of, this is a function of x alone, right? So this means your integrating factor is e to the power, thus integrating factor is e to the power क्या था वो, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स. सो यहाँ पर एफ एक्स आया है हमारा 1 by x dx, राइट? नाउ जस्ट इंटीग्रेट इट. तो ये क्या आया, e to the power minus log x, so this is equal to e to the power log x inverse, so this is equal to 1 by x, right? Now you have integrating factor 1 by x, so we multiply this integrating factor in our equation which is given above, equation number 1. So we multiply, now we multiply equation 1, okay, by integrating factor. Okay, इसको भी मैं कुछ इक्वेशन बोल देती हूँ, इक्वेशन नंबर लेट अस से 2, इक्वेशन 2. ओके, सो लेट अस मल्टीप्लाई इट. तो 1 by x का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, okay, 2 by x dx, मैं इसको m dx प्लस n dy की फॉर्म में लिख देती हूँ, प्लस ये क्या आ जाएगा, यहाँ से x x कैंसिल हो जाएगा, सो 2 log x माइनस y
एंड यहाँ से क्या हो गया आपका d बाई विच इज इक्वल टू 0. नाउ जस्ट अगेन चेक okay whether this equation has become an exact differential equation or not. So again check. So check equation 3. So equation 3 क्या आ गई, चेक कर आ रही है कि नहीं, सेटिस्फाई हो रहा है? Okay. So in this case delta m over delta y equal to delta n over delta x, which comes out to be 2 by x, right? So this implies equation 3 is an exact differential equation. And if it is an exact differential equation, then you know how to write down solution. So just write down solution. तो ये क्या हो गया, इंटीग्रल m dx. So m क्या था हमारा, 2 by x dx, okay, plus only terms which are independent of x. So only term is minus by, right, d by equal to c. Now इसको भी ये डिफरेंट सॉरी इंटीग्रेट कर दो, जो कुछ भी आए वो लिख दो. So 2 by log x, okay, minus by square by 2 equal to a constant. This is your answer. So आपको हर केस में हर बार आपको यही करना है कि आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना है एंड देन उसको मल्टीप्लाई करना है अपनी इक्वेशन से एंड फिर से चेक करना है कि हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई या नहीं. तो ये कैलिब्रेशन के लिए भी अच्छा है कि ऑल्दो यू नो कि हमने इन एग्जैक्ट इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाया है तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा, लेकिन अगर आपने गलती की है तो वही पकड़ी जाएगी, है ना, क्योंकि वो इक्वेशन एग्जैक्ट इक्वेशन बनेगी ही नहीं. लेकिन हाँ, अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा इंडिपेंडेंट नहीं निकलता 3x या y के टर्म में, तो अदर रूल्स लगेंगे, जो और रूल्स हैं, जो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको देख के हो सकता है बहुत सारी चीज़ों में पता चल जाए. जब आप प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है मुझसे भी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है. ठीक, मुझे पढ़ाने के लिए करना है लेकिन आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो फिर आपको देख के पता चल जाया करेगी. लेकिन अभी आपको देखकर इसलिए नहीं पता चल रही बिकॉज यू आर सीइंग इट फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छे से काफ़ी कुछ समझ में आ जाए, यही बहुत अच्छा इंटेलिजेंट काम है. ओके, सो नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट एग्जांपल. सो इफ योर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, लेट अस से, ओके, 3x square by to the power 4 plus 2xy. ये इजी सी चीज़ है बट यू नीड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. ओके, सो 3x square by to the power 4 plus 2x by dx plus 2x square by cube minus x square d by equal to 0. okay? कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो पढ़ते समय लगता है कि एकदम समझ में आ गई हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो वो आपकी मेमोरी से इरेज हो जाती हैं कुछ दिन बाद, है ना. तो इसलिए उसको कभी कभी आपका पढ़ने का मन नहीं भी हो तब भी उसको ऐसे ही पन्ने पलट के देख लिया करो, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं उसकी छाप बन जाएगी. तो फिर आप जब उसको दोबारा पढ़ोगे फिर आपको जल्दी समझ में आएगा. ये ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, आपका कुछ अलग हो सकता है. सो इट्स फाइन, जो भी आप करेंगे, फॉर मी इट्स फाइन. ओके, सो अगेन चेक फॉर एग्जैक्टनेस, वेदर इट इज एग्जैक्ट और नॉट. सो चेक. सो यहाँ पर हमारा m ये है एंड हमारा n क्या है, दिस वन, राइट. सो चेक डेल्टा m ओवर डेल्टा क्या था, बाई डेल्टा m ओवर डेल्टा बाई, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, अब यू आर डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू बाई, सो दिस इज इक्वल टू 12 के x स्क्वायर एंड
बाई क्यू, एंड यहाँ से आ जाएगा प्लस 2x, ये 2x आ गया, राइट। एंड दूसरा क्या है हमारा, डेल्टा n ओवर डेल्टा x, so this is equal to this is with respect to x, so this one is equal to 4x by cube, okay, minus 2x, right, 4 x क्यूब बाई क्यूब है यहाँ पर। अच्छा, फिर ये एग्जैक्ट नहीं बनेगी अदरवाइज, रुको, let us correct this equation, this is x cube by cube, okay, so this one is यहाँ पर हमारा आ जाएगा 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर बाई क्यूब माइनस 2x, okay, correct this equation please, okay. So once you have written down delta m over delta y and delta n over delta x, you can check this equation is not an exact equation, okay. And now if it is not an exact equation, then we have to apply any rule. So rule number 1 and then rule number 2. So you can apply rule number 1. If rule number 1 is not applicable, you can apply rule number 2. But here in this case, I apply rule number 2 because I know, okay. So let us apply rule number 2, and rule number 2 क्या है हमारा, अगर दिख रहा हो तो एग्जाम में से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको पता है तो कर सकते हो। अगर आपका नोन क्वेश्चन आता है, सपोज आपको लगता है कि इसमें तो डायरेक्टली ये मैं लगा सकता हूँ, तो लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, क्यों नहीं। ओके, बल्कि एग्जाम में प्रैक्टिस करके ही रखना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में आपके पास कम टाइम होता है कई बार। अभी ऑनलाइन में तो हो सकता है थोड़ा बहुत ज़्यादा देते होंगे, लेकिन वैसे नॉर्मल अगर एग्जाम हो रहा है तो आपको उतना टाइम होता है जिसमें अगर आपको जितनी ज़्यादा चीज़ें मालूम होंगी उतना ही अच्छा है। और इस एज पे तो रट्टा पावर भी बड़ी तेज होती है बच्चों की, है ना, आराम से रट लेते हैं। कुछ भी रट सकते हैं, इसीलिए तो मैं बोलती हूँ कि इस टाइम का यूज़ करो, क्योंकि इस टाइम जो चीज़ भी याद कर लोगे, चाहे वो छोटी सी पोएम हो, चाहे कुछ भी हो, वो आपको पूरी लाइफ भर याद रहती है। और बड़े पर आप रट भी लो तब भी थोड़े दिन बाद फिर वो एज हो जाती है कई बार, मतलब उसमें ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है बड़े पर। जैसे एग्ज़ाम उस समय हमें दिलवाओ तो हमारी पोजीशन आ जाती थी, लेकिन अब नहीं आएगी। हमको दिलवाओगे तो हो सकता है कि हम फेल हो जाएंगे। तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे। सो however, let us do delta m over delta y minus delta n over delta x, क्या था वो, by m. So let us do it. तो अगर आप इसे करेंगे डेल्टा एम ओवर डेल्टा बाई, तो ये हमारा क्या आया था, 12x स्क्वायर बाई क्यूब प्लस 2x, एंड ये आया था हमारा माइनस 6x स्क्वायर बाई क्यूब माइनस 2x, एंड दिस इज डिवाइडेड बाई m, तो m क्या था हमारा 3x स्क्वायर बाई टू द पावर 4 प्लस 2x बाई, राइट, यही था ना। सो नाउ लेट अस डू इट। तो ये क्या आ गया आपका, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से करते जाओ, सिंप्लीफाई करते जाओ, तो ये क्या आ गया 6x स्क्वायर बाई क्यूब, ये, और यहाँ से आ गया प्लस 4x बाई ये 3x स्क्वायर बाई टू द पावर 4 प्लस 2x बाई। So यहाँ पर you can simplify it and then you can write 2 by, इसको 2 को बाहर ले लिया अगर हमने, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3x स्क्वायर बाई क्यूब प्लस 2x, एंड यहाँ पर नीचे भी यही है हमारा, नीचे है हमारा इसको 3 को मैं
अंदर, अच्छा ये 3 मैंने बाहर लिख रखा है, आई एम सॉरी, हाँ ये मैंने गलत लिख रखा था. So now I take out by, and then this is 3x square by cube plus 2x. So this factor cancels, and then you get this thing equal to 2 by. So it is a function of by alone. So if it is a function of by alone, then you can write integrating factor. Integrating factor हमारा क्या है? Therefore integrating factor is e to the power minus f by, so minus f by d by, which is equal to e to the power minus integral 2 by d by. So therefore you get this thing equal to e to the power minus 2 log by, or this is equal to by to the power minus 2, which is equal to 1 by square, right? So आपका integrating factor आ गया 1 by square. Now multiply this integrating factor into your equation number 1. So let us multiply. So let us now multiply integrating factor in equation 1. तो multiply कर दो, क्या आया? Then we get, okay, this thing equal to 3x square by square plus 2x by dx plus 2x cube by minus x square by square dy equal to 0. इसको मैं बोल देती हूँ इक्वेशन नंबर 2. okay, now check exactness of equation number 2. okay, so check for equation 2. क्या चेक करना है हमें? ये वाली कंडीशन डेल्टा एम ओवर डेल्टा, क्या था वो, डेल्टा एम ओवर डेल्टा बाई के इक्वल टू डेल्टा एन ओवर डेल्टा एक्स है कि नहीं, बताओ. है. ओके, सो डेल्टा एम ओवर डेल्टा बाई इक्वल टू डेल्टा एन ओवर डेल्टा एक्स हमारा आ जाता है 6x स्क्वायर बाई माइनस 2x by to the power minus 2 in each case, right? So therefore this implies equation 2 is an exact equation, and once it is an exact equation, just write down solution. So the solution of this equation is integral m क्या है हमारा यहाँ पर, अब ये वाला. okay, so m हमारा आ गया 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 2x बाई dx. so यहाँ पर हम बाई को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, प्लस ओनली दोज टर्म्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ x. सो यहाँ पर कोई टर्म नहीं है, राइट? तो यहाँ पर हमारी 0 टर्म है, कोई भी नहीं है, तो ये 0 आ गया इक्वल टू ए कांस्टेंट. ओके, सेकेंड टर्म हमारी 0 है, एंड इसको इंटीग्रेट कर दो एंड लिख दो. ओके, सो यहाँ पर यू आर डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x. सो ये क्या आ जाएगा, x क्यूब बाई 3 एंड देन 3 कैंसल्स, सो x क्यूब बाई स्क्वायर, and again you are doing it with respect to x only, तो x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, जो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज x स्क्वायर बाई इक्वल टू ए कांस्टेंट. सो आप देख सकते हो कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे इजीएस्ट इक्वेशन होती हैं, आराम से सॉल्व होती जाती हैं. okay? थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस चाहिए, जो कि आप करोगे ही. okay? एग्जाम से पहले तो जरूर करोगे, अभी पता नहीं कर रहे हो या नहीं, बट अगर आप साथ में करोगे देन आई वुड बी वेरी हैप्पी.
क्योंकि अगर साथ में करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता जाएगा और आपको याद ज़्यादा रहेगा, बट अगर नहीं करते इट इज़ अप टू यू। ओके, नाउ यू आर इन कॉलेज, सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। ओके, सो प्लीज़ बी रिस्पॉन्सिबल। ओके, नाउ लेट अस डू नेक्स्ट एग्जाम्पल। अच्छा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये मोस्टली इतनी क्यों हम करते हैं, क्योंकि बिकॉज जब भी हम कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम करते हैं ना, तो लास्ट में इक्वेशन निकलती है हमारी ये डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व करते जाओ तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है, और या फिर आती है हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि यूजुअली उन्हें सॉल्व करना थोड़ा टेढ़ी खीर होता है। हर उसमें बाउंड्री कंडीशन लगानी होती हैं, इनिशियल कंडीशंस लगानी होती हैं, तब वो सॉल्व हो पाती हैं। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमारी निकल आई तो इसके इतने सारे स्टैंडर्ड तरीके हैं, ये बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाती है। तो दैट्स वाई दीज डिफरेंशियल इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो और इनको देख के आगे चल के तुम्हें पता चलेगा कि इनको देख के सिमिट्रीज का भी पता चल जाता है कि इस फिजिकल प्रॉब्लम में इसमें क्या सिमिट्री है, स्फेरिकल सिमिट्री है कि सिलिंड्रिकल सिमिट्री है कि हाइपरबोलिक है ये, तो वो भी इससे देख के पता चल जाती है। स्लोली अगर तुम इसको करते जाओ तो तुम्हें पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें तुम्हें इन इक्वेशन से पता चल रही हैं। सो बट लेट अस नाउ डू द ABCD ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो नाउ let me take this next question, which is by to the power 4 plus 2 by dx plus x by cube plus 2 by to the power 4 minus 4x d by equal to 0. Okay, so you can do it. Okay, this is a simple question, so please start doing it. बताओ ये एग्जैक्ट है कि नहीं, चेक। सो डेल्टा m ओवर डेल्टा बाई, ओके, ये क्या आ गया आपका, दिस इज योर m एंड हियर यू हैव n। सो डेल्टा m ओवर डेल्टा बाई क्या आ गया हमारा, 3 by cube, okay, oh 4 by cube, I'm sorry, 4 by cube plus 2, right? Delta n over delta x find out, so delta n over delta x, तो यहाँ पर ये आ गया by cube and second term is 0 and minus 4. Okay, so this is not an exact differential equation as we can see from here, but we can make it an exact differential equation by applying one of the rules. So here rule number 2 is applicable. Okay, so let me apply rule number 2. Okay, but you can check, you can apply rule number 1 and then you can see if it is not applicable, you can apply rule number 2. Okay, and so on. So let me check it. So delta m over delta by minus delta n over delta x by क्या था वो m, तो क्या आ गया बताओ, क्या आया, डेल्टा ये वाला डेल्टा m ओवर डेल्टा बाई माइनस डेल्टा n ओवर डेल्टा x। सो हमारा है ये 4 बाई क्यूब प्लस 2, हाँ बोलो बच्चे, माइनस बाई क्यूब माइनस 4 डिवाइडेड बाई m, m क्या है हमारा, बाई टू द पावर 4 प्लस 2 बाई, ओके, तो ये आ गया आपका, यहाँ से आ गया 3 बाई एंड यहाँ से आ गया आपका बाई स्क्वायर प्लस 2, नहीं बाई क्यूब बाई 2, बाई क्यूब प्लस 2 एंड ये हमारा कैंसिल हो जाएंगे एंड देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 3 बाई। यही आया है कि नहीं आप लोगों का, गुड, एंड देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर is your e to the power minus integral f by, so 3 by dy, right? So therefore it is equal to e to the power minus log minus 3 log by, which is
by to the power minus 3, which is equal to 1 over by cube, right? So 1 over by cube your integrating factor is your integrating factor, and now we multiply this integrating factor. So बताओ क्या आ गया? So now we multiply integrating factor in equation 1. तो ये क्या आ गई? by plus 2 by square dx plus x plus 2 by minus 4x by cube dy equal to 0. So you can now check whether this equation has become an exact differential equation or not. Okay, so check कर लो बच्चे लोगों and then write down solution. लिख लोगे कि नहीं? Now check it and write down solution, and solution check कर लेना. And then I can close this class for today. We meet on Saturday then. Okay? Is this all right with you? Yes, ma'am. Thank you, ma'am.